Anjali, lovely to see all of you this very morning. Namaste, Vaishali. Great. I'm in Uttarakhand, and all of you are watching me on YouTube. Namaste, everybody on YouTube. Welcome to this week's Happy Mind session. I'm sure you had a fantastic week, as I had. Mera bhi bahut badhiya hafta gaya, and a lot of stories to share with all of you. Namaste, Suhas, Chandramohan, and those of you joining for the first time, welcome to Happy Minds. And this is different Happy Minds because I am conducting this Happy Minds from Uttarakhand. It's bone chilling cold, you know, and kal to barish bhi hui, thand thi, and the way I'm sitting, in fact 15 minute pehle tak main topi laga ke baitha hua tha, but then I said Happy Minds hai, let me take off the cap and then share with you without the topi. I'm sure I will last. So it's pura mausam jo hai ek barfila mausam ho raha hai. I'm looking different. Oh yes, I'm looking different today. Namaste, Supriya. Happy morning. Chalo, great. I have something beautiful to share with all of you today. And ये light मेरे सामने flicker कर रही है. I don't know how the voltage is going to be here. So survive with me and stay with me. So what I'm going to share with you, let me just give you an idea about it. I was just thinking about कि हम लोग ना काफी ध्यान देते हैं on when people become successful. So we kind of celebrate the success. So आज मैं आपसे आज share करूँगा why should you not celebrate the success of others? Why you should avoid spending time on celebrating the success of others. Don't take me wrong, but wait for it. Wait for till I share with you why I'm saying what I'm saying. So look forward to it. And a couple of more points which will make you live your 2023 in a very powerful way. तो बहुत जबरदस्त एक insightful HM होने वाला है. But before I take you on the journey of some insights from my side, let me share a few success stories जो मेरे सामने आई हैं. And all those who have joined in for the first time, how Happy Minds are conducted, जो लोग मुझे YouTube में सुन रहे हैं, जो first time आए हैं, just want to share this with you that Happy Minds starts with meditation, and we have some lovely time. In fact, बहुत सारे attendees they don't want to miss out on the morning bhajan, the morning meditation time. और वो 5 से 7 मिनट का जो समय होता है ना, it's a very rejuvenating time. It's a very re-energizing time. और ऐसा जबरदस्त कनेक्ट बैठता है, और जो मुझे फीडबैक्स आते हैं about meditation, thank you so much for that. And all of you, अगर आप में से कोई मिस कर रहा है सुबह का meditation time during Happy Minds, so I would strongly suggest आप मिस मत करो. So normally we start with meditation and then we have a round of success stories. मेरे पास कुछ कहानियां आती हैं of people who have done my batch, or of people who have been Happy Minds, and उन्होंने कुछ, and then of course I have my insights to share. One is from Sundaraj, and he is from Kolhapur, and he was doing my batch somewhere in I think 2015-16. He was doing my business batch, my business leadership batch, the game of business, and he messaged and he says, "Sir, we conducted a seminar on cost saving and compressed air and pneumatics." Technical नाम है उसका जो वो काम करता है, and that was on 7th of January. It was a big success. And the second part is what I want to share with you. वो बोलते हैं कि sir, now this is something which if you're an entrepreneur, आप इस बात को ध्यान से सुनना. He says, sir, learn from you that the last many years I learned from you about reaching out to the market and creating a brand which is seen as an expert in that category. So thank you so much for making me realize this. And this is so wonderful. तो एक होता है ना, आप जाके सेल्स करते हो, आप जाके अपना प्रोडक्ट बेचते हो, अपनी सर्विस बेचते हो. एक है कि somewhere you position yourself in a way where your prospective customers, जो आपके customers बन सकते हैं, वो आपको देखते हैं as an expert in that category. Whatever you're selling, whatever service or products you have, उसमें आपको expert के रूप में देखते हैं. तो the question you have to have in your mind is, as entrepreneurs, अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो are you selling your product and services only, or are you actually making them realize that you have an authority on that product and service? और एज अ बायर जो है, अगर आप देखोगे, इफ यू वर टू टर्न योरसेल्फ एंड बी अ बायर, तो आप हमेशा आप देखोगे कि यू वुड वांट टू बाय फ्रॉम समबडी जिसके ऊपर आपको विश्वास होगा कि इसको अपना काम मालूम है. सो सुंदरराज ने क्या किया, मैं बहुत सालों से कहता आ रहा हूं
and I'm glad that he picked it up, and he says, "Sir, product तो हम बेचते ही थे, लेकिन now I've started giving my insights on what is pneumatics all about, what is this product industry जो हम जिसमें हैं, ये industry क्या करती है." So when people see you as the owner of the industry, they will automatically buy products from you. But if they see you as the owner of the products, they may have a second thought कि यार ये तो माल बेच रहा है, but इसको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए. But if you own the industry in terms of your understanding, in terms of your knowledge, in terms of what's happening in the industry, तो आपका विश्वास लोगों पे बढ़ता है. So that's what I wanted to share this with you. And congratulations, Sundar, that you have moved and taken that step in that direction. The second success story is from Orbital, and they said, "Sir, first time in the history of our life, and we have touched 200 crores. And in December, 9 months of the financial year, they could touch a turnover of 200 crores. And he says, we have still 3 months left with us to break more records." And when he messaged me, and I realized that this was one company which joined me in 2013, and they were kind of doing 20 odd crores. And from 2013 to 2023, ये 10 साल का सफर, from 20 odd crores to 200 crores, ये 10x growth का बहुत बढ़िया example मेरी life का, which I want to share with you. Of course, I did not do anything. They did their business. उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने जो भी business में risk लेने थे लिए, जो structure build करना था किया. I can just take small credit that yes, under my guidance, they realized certain things and they started putting up the systems accordingly. So I'm happy to listen, because now आप जब काम करते रहते हो तो एक समय आता है where you reach a state where a lot of work has happened behind you, and now it's a time of stories only. कि stories पे stories आती रहेंगी, क्योंकि आपने इतना पीछे हुआ है ना, वो build up हुआ है. Now it's time where the critical एक limit आती है जहां पर now it's time for stories to tumble down and stories to just come out. They are just on the tip of creating some kind of a story for the world. And I think last 25-26 years of my life, पहले 15-20 साल तो ये build up करने में लग गए, and last 2-3 years I'm seeing people getting rewards, and I'm seeing people breaking their own records, people receiving appreciation, recognition from the world outside, and it's a matter of pride. It's a matter of pride. So congratulations, Team Orbital. And the last success story sharing of today is from a person by the name of Sirish. This story didn't come to me or on my account. It came to my team, and since my team was in touch with him some years back, so Sirish happens to be from a company called Kubota, and I've been training Kubota for some years, and he had heard me in a few of my training programs, and especially in 2019. So he likhta hai meri team ko. So I had heard sir in the training program in 2019, and I got inspired to keep up the spirit of entrepreneurship. So I would always say in the programs that आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप business कर रहे हो, it doesn't matter. The spirit has to be one of an entrepreneur. तो अगर आप नौकरी भी कर रहे हो ना, और आपके अंदर आत्मा entrepreneur की है, तो आप कुछ जबरदस्त काम कर जाओगे. But the moment problem क्या होता है कि when people start thinking of themselves as an employee, and of course the bosses start thinking of themselves as employer, problem वहां हो जाता है. तो अगर आप as a team member आप सोचते हो कि यार I am an entrepreneur, ये जो मुझे काम दिया गया ना, मैं इसका मालिक हूं, ये जो मुझे डिपार्टमेंट दिया गया ना, मैं इसका मालिक हूं, और बस वहीं पर फर्क आता है कि आपने मालिकियत ली कि नहीं ली. अगर आपने कहा ये तो काम दिया गया है मुझे, तो एक अलग बात है. अगर आप कहते हो कि मुझे मालिकियत दी गई है इस काम की, वो एक अलग बात है. तो अगर ड्राइवर भी कहता है ना, ये गाड़ी मेरी है, मैं चला रहा हूं, मैं मालिक हूं इसका, तो जब वो सोचेगा मैं मालिक हूं इस गाड़ी का, तो फिर वो मालिक के माफिक उस गाड़ी का ध्यान रखेगा, मालिक की तरह उसकी देखभाल करेगा, उसकी सफाई रखेगा, क्योंकि वो ओन करता है ना गाड़ी को. लेकिन जब तक वो सोचेगा मैं ड्राइवर हूं, ये तो मैं काम कर रहा हूं, तब शायद उसके काम करने के तरीके में फर्क आएगा. So somewhere I've always been speaking this, and I'm sharing this again. If you're a team member somewhere, don't just work like a team member, work like you own that work. You own the outcome of that work. और जब मालिकियत ले लेते हो अपने काम की और अपने काम के आउटपुट की, फिर आपको कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से? सिर्फ नाम पे कंपनी होने से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो विजिटिंग कार्ड पे आपका नाम आ जाए कि आप हेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है कि आपने काम की मालिकियत ली है कि नहीं. Am I making sense here?
So he says, Sirish says that in 2019 he heard me and he got inspired and he started working with the entrepreneur's mindset from that day. And this is so beautiful. He says, I started working like with the entrepreneur's mindset from that day, and I took a goal that I want to become an entrepreneur in my field of passion. He says I had to wait for a few years, but in April 2022, I quit my job with a good pay, and now I have my own company. I am into customized corporate gifting now, and I'm so happy that I moved, I jumped, and I took this step. So sir को thank you ऐसा उसने बोला. So God bless Sirish and welcome to the fraternity of entrepreneurs. I'm sure you will do awesome work. चलिए, let's take off and kickstart today's happy minds with today's subject. So मैंने आपसे कहा, of course I have my week lined up. I missed out on sharing with you. I was in Delhi a few days back and I was at the Auto Expo. बहुत जबरदस्त एक experience है, and especially for those who are from the auto industry. What awesome cars are waiting to hit the road. Now all the company, in fact, the entire Auto Expo, and what I saw was all about EV. So awesome, beautiful, lovely cars are waiting to be launched in the next couple of years, whether it be from Tata's, whether it be from Hyundai, Kia, whatever companies, MG, Morris, garage, unki jo company hai. Beautiful cars are lined up. तो उनको देख के ऐसा लग रहा था बचपन की जो गाड़ियां हम लोग कभी खरीदते थे ना टॉयज शॉप टॉय स्टोर में से, वैसी गाड़ियां जो हैं सामने लाइव आपके हैं. So it was a beautiful experience. Apart from that, I got a chance to meet the CEO of Tata, Mr. Girish Wagh, and I was there with the Repos, the company I'm mentoring and coaching, and I'm an advisor to. And we were launching our diesel, our datums. We were launching our ethanol, vehicles which are there to deliver ethanol across the country. So उसके लिए हम गए थे तो Tata के COI, and it was a lovely meeting the man behind Tata Motors, who's driving Tata Motors across the world. What clarity, what observation powers he had. Those 10 minutes which I spent with him, there was so much to take away and pick up from what he spoke. And another chance meeting was, though there was no discussion, कुछ बातचीत नहीं हुई because बहुत भीड़ भड़का था. So we had Union Minister Gadkari ji who आए थे to inaugurate one of the vehicles of Repos. So it was all chaos, commotion there. So he came and he cut the ribbon in that couple of minutes he was there. And because he had to go to some other stalls in Tata and other companies, but I happened to be there, and it was nice being there. So ये मेरे साथ हुआ, and then from there I came to Uttarakhand, and I'm here for a couple of days. So last week was fantastic, and the coming week is equally packed and equally happening for me. So बहुत जबरदस्त हफ्ता lined up है. So tomorrow we have a Blueprint 2023, a beautiful, lovely, crisp program. And I'm so happy to have so many who have decided to be a part of this. In fact, कल ही मुझे एक message आया from Shripal Mutha, and he says, sir, मैं अपने जो मेरे 3,500 contacts हैं मैंने सबको भेज दिया है the link to join the batch. And I'm surprised कि बहुत from all over India we have people joining in for the program. And I realized the more I see people joining in and being a part, because it's online ना, तो कहीं से भी लोग join कर सकते हैं. तो मोर आई रियलाइज कि कितने लोग अवेयर हो गए अपने आप को एक स्ट्रक्चर देने के लिए. कितने लोग अवेयर हो गए हैं कि दे वांट टू मेक देयर कमिंग ईयर वेरी पावरफुल. कितने लोग ऐसे जागरूक हो गए हैं टू इंश्योर दैट वो ऐसे लाइक अ वॉन्डरिंग जनरलिटी के रूप में अपने साल को ना जिए. तो इट वाज सो नाइस टू नो दैट द पीपल हु हैव रियलाइज दैट कि 365 दिन मेरे अच्छे जाएं, उसके लिए ये एक दिन तो देना बनता है. सो happy, and those of you who are still on the line of being a part, be a part. It's going to be an online workshop, and not that you don't know about goals, not that you have no idea about what objectives are, but एक माहौल होता है ना, उस माहौल के अंदर आप कर लेते हो. वो माहौल बड़ा जरूरी होता है. करने को तो आने को तो सब आ जाएगा, लेकिन एक माहौल की बड़ी जरूरत होती है. So tomorrow we're going to create that environment where we will set the direction for the year to come. So if you're there, it will be wonderful. If you can send your loved ones, even more wonderful. And look forward to it tomorrow. And then we have on 17th, I have the 38th batch of Arasamasti coming up.
which is a 9-month intervention with me on the business side. So wo I'm looking forward to. We have some beautiful entrepreneurs who have joined in. बहुत अच्छे entrepreneurs आ गए, and I'm looking forward to my journey with them. So that's another thing happening on 17th. And then on 20th, we have Pune's largest investor startup meet, and I'm going to be on stage with Vishay Khurana. He's the co-founder for Ship Rocket. It's the fastest unicorn in India in the logistics space. So एक बहुत जबरदस्त इंटरेक्शन होगा. I'm looking forward to it कि कोई एक ऐसा 8-10 हजार करोड़ की कंपनी कैसे बनाता है, क्या वो करता होगा, क्या माइंडसेट रखता होगा, क्या सोच रखता होगा, क्या अंदर चलता होगा उस इंसान के when he would be running and you're taking this company ahead. So we all are 100, 200, 300 crores की हम कंपनी में काम करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बट एक 8-10 हजार करोड़ की कंपनी को खड़ा करना, ये क्या लगता होगा? So I'm looking forward to my interaction with him. So that is a week packed. I'm sure आप लोगों का भी week बड़ा अच्छा होगा. If you want to be a part of this investor meet, you can register, you can get in touch with my team and be there for the evening. I don't know if seats are there or not, but देख लो, अगर होगा तो आ जाना. चलो, this is about me, and the next 3 months are also beautifully lined up. चलिए, आज का HM में जो सब्जेक्ट आपसे मैं बात करना चाहता हूं, 2 बातें हैं. Let me start with the first one, and if time permits, then we'll go to the third one, or if time permits, we'll go to the second one. अगर एक में समय लग गया, then the second one will come next week. तो मैंने आपसे कहा कि avoid spending time on celebrating the success of others. I don't want to say कि stop celebrating the success of others, but avoid spending time on the success of others. क्यों? क्या दूसरों की कामयाबी पे खुश नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए. तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरों की कामयाबी पे खुश ना हो. I'm not saying कि you stop being happy about the achievements, the success of others. I'm not saying this. I'm saying stop spending time on the success of others. क्योंकि जब आप किसी की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हो, right? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उनको congratulate नहीं करो. किसी ने गाड़ी ले ली, तो of course you see the car. I'm not saying stop being happy for that guy. So of course you're happy and you wish him. किसी ने घर लिया, किसी ने अपने आप को अच्छी बॉडी बना के दे दी, and has become much more fitter than what he or she was. तो आपने तो खुश होना, आपने उसको बधाई देनी है. किसी ने अपने टर्नओवर को एक एक्स लेवल पे लेके गया, तो of course you got to wish and you got to congratulate the person. किसी को recognition मिला, so somebody has got an award, somebody made a factory, somebody jumped into business, somebody got promotion, somebody made a great body, somebody has achieved in certain areas. तो ये तो कामयाबी है और हमने इसको acknowledge करना चाहिए, हमने खुश होना चाहिए. लेकिन हम उसको सेलिब्रेट करने में इतने मगन हो जाते हैं कि हमारा सारा फोकस हो जाता है उनकी कामयाबी में और हम कुछ मिस कर जाते हैं. तो मेरा आपसे सबसे पहला पॉइंट है, अवॉइड स्पेंडिंग टाइम ऑन द सक्सेस ऑफ अदर्स. बिकॉज जब आप टाइम स्पेंड करोगे ऑन द सक्सेस ऑफ अदर्स, तो आपका फोकस कहां जाएगा? मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप टाइम स्पेंड करोगे ऑन द सक्सेस ऑफ अदर्स, तो आपका फोकस कहां जाएगा? तो आपने, किसी ने गाड़ी ली या किसी ने फैक्ट्री बना ली या किसी का टर्नओवर अच्छा हो गया और आप उसकी कामयाबी पे फोकस कर रहे हो, तो आपको क्या ध्यान में आएगा? क्या दिखेगा आपको? व्हाट विल यू सी? Is my voice breaking or is my voice clear? Vidisha, give me a signal on that. So we are good with it. Okay, great. हाँ जी, तो मेरा सवाल आपसे है कि जब हम लोगों की कामयाबी को लेकर सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें क्या दिखता है? हमारा फोकस कहां जाता है? Tell me. My question is very simple. Preparing for party. Success only, not the efforts and struggle. Okay, yeah. Yep.
We're waiting for the answers from your side. We kind of, we may go, not guarantee, but we may go into comparison with the person. We focus on achievements. तो उसने क्या पाया, हम उसमें चले जाते हैं. फिर हमने क्या खोया, हम उसमें चले जाते हैं. Absolutely, right? So what people have earned through the success. So unknowingly, when we celebrate the success of others, we unknowingly go into उसने क्या पाया, what he got, what he achieved, what he gained, what she became. तो उस इंसान ने क्या पाया, हम उसमें चले जाते हैं. और कुछ लोग चले जाते हैं हमने क्या नहीं पाया या हमने क्या खोया. And that's what we call as comparison, because the focus is on the success of others. And I want you to shift, a slight shift I want you to bring in your thought process. अच्छा, मेरी टीम ने एक मैसेज दिया आप लोगों के लिए कि since I am streaming from Uttarakhand and there's a challenge here in terms of the range and the Wi-Fi is not here, so I'm using my phone's output. So if you can use headphones and and listen to me, then it will be great for you, right? So that's a message from my team for all of you. Okay, coming back to my question. तो जब हम किसी और की कामयाबी पे फोकस करते हैं, so I got an answer why I'm not in the success group. ये क्वेश्चन आता है आपके मन में, right? You start thinking about your weakness. Absolutely. Now, I want you to understand this. There are three things which are there. One is, अगर हम focus करते हैं on the kind of life we are living, we are focusing on the success and achievements of others, तो एक comparison possibility होती है. I'm saying, let us not celebrate the success of others. Let us celebrate the struggles for that success. Because the secret of success is not there in what they have achieved. The secret of success is also not in what men or women did. जो कामयाबी की जो secret है, it is not hidden in what people achieved. जो उन्होंने पाया, उसमें उनकी secret नहीं छुपी है. और कुछ लोग कहते हैं सर शायद फिर उनके सीक्रेट छुपी है जो उन्होंने काम किया है उसमें. और मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां भी वो सीक्रेट नहीं छुपी है कि उन्होंने क्या किया. The secret of success is not on what men and women did to be successful. The secret of success is somewhere else. और वही हमारे नजरों से मिस हो जाता है because we are busy applauding, we are busy focusing on the success of others. We miss out on some other side. So stop celebrating the success. Start celebrating the struggles of the person. And when you start celebrating the struggle of the person for that success, आपको कुछ दिखना चालू हो जाएगा. मैं वापस बिल्ड अप करता हूं सब्जेक्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एक होता है किसने क्या पाया, फिर दूसरा होता है किसने क्या किया वो पाने के लिए. मैं कह रहा हूं इन दोनों जगहों में कामयाबी का सीक्रेट नहीं है. अगर आपने पाया में फोकस किया कि व्हाट द पर्सन गॉट, the award, the money, the turnover, the body, whatever it is, you may go into jealousy, you may go into comparison, or you may just be happy and that's it. Right? You focus on what men did, what these people did. अगर आप वहां फोकस करोगे तो शायद आपको कुछ बातें मिल जाएंगी जो आप अपने लिए अच्छा कर सकते हो. मैं आपसे कह रहा हूं इसके भी नीचे एक और सवाल है. अगर आप वहां गए, you will actually find the secret of success. So before we go there, have you got some clarity on where I want to take you today? There are people who have achieved. There are people who are asking this question, इन्होंने क्या किया? What these people did to achieve? मैं आपसे कह रहा हूं इसके भी नीचे एक और सवाल है. और अगर वो सवाल हमने पूछ लिया और पूछते रहे बार बार, तो you will see that somewhere you will be able to hold on to that secret of success. जो secret नहीं है actually, वो हम लोग देख नहीं रहे इसलिए हमें लगता है secret है. It is so obvious. It is right in front. But we don't think of it as so obvious. तो हमें लगता है यार कुछ तो ये रहस्य की बात. Okay, so now let me see कि अगर the secret of success is not what people achieved,
द सीक्रेट ऑफ सक्सेस डज नॉट लाई इन व्हाट पीपल डिड, तो फिर सीक्रेट ऑफ सक्सेस कहां पर है? हम कहते हैं ना, जिसने हार्ड वर्क किया, इसने इतनी मेहनत करी, इसने दिन रात मेहनत करी, he burned the midnight oil, that's the secret of success, right? उसने बहुत परसिवियर किया, उसने बड़ा पेशेंस दिखाया, that's the secret of success. उसने कमिटमेंट दिखाया, that's the secret of success, right? हम ऐसा बोलते हैं ना. So what made these people do what they did? Now let me take you deeper. This is what price they paid, that thought, to start the change. How he made success actions. What he's focused on. Why did they did what they did? Why he didn't do? Chalo, let me build it one more time for all of you, and then I'll share with you. It's a very simple answer, very obvious. जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको अच्छा ये हमने कैसे मिस कर दिया. तो मैंने कहा, जब लोग कामयाब होते हैं तो अक्सर जनता जो है खो जाती है इन उनकी कामयाबी के जो अचीवमेंट्स जो उन्होंने पाया होता है, जो वो बन गए होते हैं, हम उसमें खो जाते हैं और वहां पर उनकी कामयाबी का रहस्य या राज नहीं छुपा हुआ है. द सीक्रेट डज नॉट लाई देयर. सो स्टॉप celebrating, stop spending time there. Then I said, let's focus on what they did. तो यहां पर भी कुछ आपको मिल सकता है जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं. So what made, अभी हम उसके भी नीचे आ रहे हैं. So it's not about what these people did. The secret of success lies in, now listen to me, the secret of success lies in what made these people do what they did. जो इन्होंने किया, इन्होंने ये परसिवियर किया, इन्होंने ये हार्ड वर्क किया, इन्होंने ये मेहनत करी, ये सुबह उठ के पढ़ाई करते थे, रात को पढ़ाई करते थे, ये अपना प्रेजेंटेशंस को के लिए बहुत जान लगाते थे, जबरदस्त इन्होंने मेहनत करी. तो they slogged, they ran, they jogged, they went to the gym, they took a trainer, they did everything. So secret of success does not lie on what they did. The secret of success lies in why they did what they did. ये इन्होंने क्यों किया, क्यों उन्होंने मेहनत करी, क्यों उन्होंने सुबह उठ के ठंड में जब सब लोग सोते हैं तो इन्होंने भी सुबह क्यों उठे, क्यों उन्होंने मेहनत करके बढ़िया अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया टू गिव टू द कस्टमर्स, क्यों उन्होंने मेहनत करके अपने सुख दुख को साइड करके इन्होंने वो कंपनी बिल्ड करी. तो what made these people do? And the answer to that is, all people who have been successful, they did what ordinary people did not like to do. They formed a habit. The secret of success lies in realizing this, that जितने भी लोग कामयाब हैं उन्होंने एक आदत बिल्ड करी, और वो आदत क्या थी? वो आदत थी वो काम करने की जो ऑर्डिनरी साधारण लोगों को पसंद नहीं आती थी, जो ऑर्डिनरी लोगों के डिस्कंफर्ट जोन में थी, जो ऑर्डिनरी लोगों के प्रेफरेंस में नहीं थी. वो काम करने की आदत इन कामयाब लोगों ने लगाई. तो जिसने अच्छी बॉडी बनाई उसको भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है यार. जैसे किसी साधारण इंसान को भी उठना अच्छा नहीं लगता, उसको भी उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद भी वो उठता है. जिसने बहुत बढ़िया पीपीटी बनाया टू गिव टू द कस्टमर, उसको भी वो मेहनत करके सब पूरा नेट से सब सामान निकाल के रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करके उसको भी ये करने में मजा नहीं आता है. जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान को करने में मजा नहीं आता, इसको भी मजा नहीं आता, लेकिन इसको मजा ना आने के बावजूद भी इसने वो प्रेजेंटेशन बनाया. एक साधारण इंसान को रिस्क लेने में मजा नहीं आता, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, और एक कामयाब इंसान वो भी रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन उसने रिस्क लिया, उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसने फैक्ट्री बनाई, उसने नई मशीन लाई, उसने अच्छे महंगे लोगों को हायर किया. उसको भी डर लगता है, इसको भी डर लगता है, लेकिन उसने डर लगने के बावजूद भी उसने वो रिस्क लिया. ऑर्डिनरी इंसान को भी एक कोच लाने में इच्छा नहीं होती. एक कामयाब इंसान को भी लगता है मैं कोच लूं कि नहीं लूं, उसको भी ऐसा मन में होता है, लेकिन वो उसके बाद भी वो कोच लेता है टू मेक हिमसेल्फ फिजिकली मच मोर स्ट्रॉन्गर, मच मोर पावरफुल. कि वो जिम जाता है, वो कोच लगाता है, उसको भी पसंद नहीं है पैसा खर्च करना, लेकिन वो फिर भी पैसा खर्च करता है. ऑर्डिनरी इंसान को भी पसंद नहीं है पैसा खर्च करना कोचिंग पे, तो वो नहीं करता, लेकिन ये करता है.
So the question is, why do these people do? Why do these people form this habit, which they themselves don't like? इनको भी पसंद नहीं है, फिर भी वो आदत बिल्ड करने के लिए मारामारी करते हैं. और उसका आंसर है, because in this building of the habit of doing things which they did not like themselves, they become what they want to become. इनको मालूम है कि मैं अगर वो काम करूंगा जो मुझे पसंद नहीं है, अगर मैंने ये हैबिट बिल्ड कर ली वो काम करने की जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरे प्रेफरेंस में नहीं आ रहा है, अगर ये मैंने हैबिट बिल्ड कर ली, तो मैं सडनली उन लोगों की श्रेणी से अलग हो जाऊंगा जो वही काम करते बैठते हैं जो उनको पसंद आता है, वही काम करते बैठते हैं जो उनके प्रेफरेंस लिस्ट में होता है, वही काम करते बैठते हैं जो उनको लाइकिंग आता है. और मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि जो काम आपकी लाइकिंग में है, जो आपके प्रेफरेंस में है, जो आपके कंफर्ट में है, जो आपके कन्वीनियंस में है, वहां आपकी कामयाबी नहीं छुपी है यार. क्योंकि अगर छुपी होती तो मिल जाती ना अभी तक. अगर आपके आज के उठने, रहने, खाने पीने के तरीके से अगर आपकी बॉडी अच्छी बन सकती थी तो बनी जाती ना. तो क्यों नहीं बनी बॉडी आपकी अभी तक अच्छी? वो इसलिए नहीं बनी है क्योंकि आपके प्रेजेंट रिजीम में, जो आपके प्रेजेंट जीने का तरीका है, उस तरीके से आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनने वाली है. तो आपको उस रिजीम से बाहर निकलना पड़ेगा, एक आदत बिल्ड करनी पड़ेगी. और वो आदत है कि ये सब चीज जो मुझे पसंद है, इसको छोड़ के मैं वो करूंगा जो मुझे पसंद नहीं है. बस यही आदत कामयाब लोगों ने बिल्ड कर ली. They subordinated their likes and dislikes to the higher purpose of their life. उन्होंने अपना जो जिंदगी का बड़ा मकसद है उसके प्रति अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को सबऑर्डिनेट कर दिया. उसके प्रति उन्होंने अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को गिरवी रख दिया. कहा छोड़ो ना लाइक्स डिसलाइक्स को, मेरा मकसद ये है. तो उसके लिए यार ये छोटी लाइक्स डिसलाइक्स की बातें क्या कर रहे हैं कि मैं वो करूंगा जो मुझे पसंद है, मैं वो नहीं करूंगा जो मुझे पसंद नहीं है. ये छोड़ो ना, ये तुच्छ बातें हैं. ये आदत उसने डेवलप कर ली, सिर्फ एक आदत. और वो आदत है, I will subordinate my likes and dislikes to the higher purpose of my life. The question to all of you is, what's your purpose? करना क्या चाहते हो? What's that purpose which you have? और उसके लिए फिर आपको अपने साधारण जीने के तरीके को तो साइड करना पड़ेगा. तो जब हम किसी आदमी की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं तो हम अक्सर उस अचीवमेंट्स पे फोकस करते रहते हैं. I'm saying let us focus on this very thought. What made these people do what they did? ये क्यों पसीना बहाते हैं? Why? ये क्यों इतनी मारामारी करते हैं? Because ये पसीना बहाने में, ये मेहनत करने में, ये परसिवरेंस करने में, ये कमिटेड रहने में, ये अपने एक मकसद की ओर चले जाते हैं. They fulfill a bigger purpose of their existence on this planet. और हम कहीं वो आदत बिल्ड नहीं कर पाए. तो सबऑर्डिनेट आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सो ये पहली आदत जो मुझे लगता है कि अगर आपने बिल्ड करी दिस ईयर फॉर योरसेल्फ, दैट जो आपका लाइक्स डिसलाइक्स है ना, उससे बाहर निकले. एंड द सिंपलेस्ट एक एक्शन आपको देता हूं जो आप कर सकते हो मटेरियलिस्टिक लाइफ का. मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी एक छोटा सिंपल आपको एक एरिया देता हूं. आपका एक लेट्स से योर ईटिंग हैबिट्स, वहां पर एक कॉन्सेप्ट को डाल दो. और वो कॉन्सेप्ट है डिले ग्रेटिफिकेशन. डिले योर ग्रेटिफिकेशन. तो जैसे सपोज आपको गुलाब जामुन पसंद है और आप कहीं पार्टी में गए हो एंड तो आपको गुलाब जामुन दिख रहा है. इनफैक्ट आपकी नजर सब खानों से बच के वहीं जा रही है. आई एम जस्ट सेइंग डिले. वो आप खाओगे तो आपको बड़ा अच्छा है, यू विल फील ग्रेटिफाइड, यू विल फील वाओ. आई एम जस्ट सेइंग उसको डिले कर दो. खुद को बोलो अच्छा कल खाऊंगा यार, पक्का कल खाऊंगा. तो जो आपको पसंद है आपने अपने आप को उससे दूर रखा. व्हाट यू लाइक यू हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम डूइंग दैट. तो वहां से आप जो है, ये खाना इज द सिंपलेस्ट एरिया वेयर यू कैन बिल्ड दिस हैबिट ऑफ डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन. फ्रॉम देयर यू मूव टू योर स्लीप हैबिट्स. कि सुबह उठना जो है ना आपको पसंद नहीं है, देर तक सोना आपको पसंद है. तो जब आप सो रहे हो ना तो आप कहो यार नहीं कल सोऊंगा यार, मैं अभी तो उठ जाता हूं. यू डिले दैट स्लीप ग्रेटिफिकेशन.
यू डिले। रात को आपको लगता है यार कितने सालों से मैं सोया नहीं हूं, एंड आंखें बंद हो रही हैं, और वो किताब बगल में पड़ी, वो कह रही है यार एक पेज तो खोल के पढ़ ले, कभी तो उठा ले पेज, ये कवर के आगे तो बढ़ तू कभी। आई एम जस्ट सेइंग, नींद आपसे कह रही है कंबल में मुंह डाल के सो जा। आई एम जस्ट सेइंग उस समय डिले ग्रेटिफिकेशन, ये जो ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, ये जो सुख मिलेगा ना सोने का, इसको अच्छा कल जल्दी सो जाऊंगा, आज 1 घंटा और, आज आधा घंटा और, आज 15 मिनट और। जब आप इन एरियाज में, जो बड़े आसान एरियाज हैं, यहां पर अगर आपने अपने जो ये सुख है उसको पुश कर दिया कल पे, तो धीरे धीरे आपकी आदत बिल्ड हो जाएगी वो काम करने की जो आपके पसंद नापसंद के दायरे से बाहर, और उन्हीं कामों में जो आपके पसंद नापसंद के दायरे से बाहर हैं, उन्हीं कामों में आपकी कामयाबी छुपी है। दैट्स द सीक्रेट, दैट यू बिल्ड दिस हैबिट ऑफ staying away from your likes and dislikes. You build a habit of doing things which ordinary people don't want to do. Ordinary people want to stay in that zone of likes and dislikes. They choose their actions based on what they like and what they don't like. But people who are successful, they choose the actions which will take them to their purpose. You there with me on this? बहुत सिंपल है, ऑब्वियस है, हमारे सामने है ये पॉइंट, लेकिन हम लोगों के लिए ताली बजाने में लग जाते हैं और ये पॉइंट मिस कर जाते हैं। तो आज के बाद आपको कोई भी कामयाब इंसान मिलेगा, जो भी एरिया में वो कामयाब हुआ है, सेलिब्रेट फॉर हिम, शेक हैंड्स विद हिम, कांग्रेचुलेट हिम, एंड देन इमीडिएटली गो इनटू दिस मोड, इसने क्या किया होगा, what he must have done, why he did that, ये आदत इसकी यार, अच्छा ये, oh, this is the area which I want to pick up. So because these people knowingly unknowingly have built a habit of doing those things which ordinary people don't want to do, they don't like to do. And I'm sure वहां पर आपको उस इंसान का सीक्रेट मिल जाएगा। ऐसे 4-5 इंसान मिल गए पूरे साल भर में, और 4-5 सीक्रेट्स मिल गई सबकी, और क्या चाहिए। तो सेलिब्रेट द स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल, डोंट सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ पीपल, सेलिब्रेट देयर स्ट्रगल्स। सो इस साल का ये एजेंडा बना लो। एंड अ सेकंड थिंग व्हिच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड टुडे इज, and I'm talking to you from experience. Now, आज का 1128वां हैप्पी माइंड्स है। Why am I doing this? कभी-कभी मुझे भी लगता है ना कि यार सुबह काहे को उठने का, अभी इतनी ठंड हो रही है उत्तराखंड में इधर, it's bone chilling, you know, ऐसा आपकी अंदर की बोन्स भी कांपती है। So I got a few inners and I'm sitting here. तो it's also okay ना कि we can drop a message and say भाई आज HM नहीं होगा, it's easy ना, लेकिन that's not what I have built my habit for. I push myself. In fact, मैं पुश ही नहीं करता हूँ, आदत ही बन गई है, आदत ही बन गई है। कभी कभी मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स वो समझ नहीं पाते। I've got so many relatives, friends here, those who want me to be there. I said नहीं, मेरा ये हैप्पी माइंड्स का स्केड्यूल ऊपर नीचे नहीं करो। So it's not a pain point for me. It's not a struggle for me now. It's become a habit for me. And why am I doing this? I achieved the bigger purpose of my life. So I have subordinated my likes and dislikes. मुझे क्या भाता है, क्या नहीं भाता है, उसको मैंने subordinate कर दिया to the higher purpose. And the higher purpose is connecting with all of you. And that's what it is. तो ये अगर आपको समझ में आ गया that you're not driven by your likes and dislikes, but you're driven by a purpose which is above your likes and dislikes. That is the secret to success. क्योंकि बहुत कहानियां चल रही हैं यार दुनिया में। कहानियां क्या चल रही हैं? Do what you love to do. एक ही जिंदगी है, वो करो जो तुम्हें भाता है। जो तुम्हें भाता है वो मार्केट को नहीं चाहिए भैया। जो तुम्हें भाता है उससे तुम अच्छे नहीं बन रहे हो। जो तुम्हें भाता है वो तुम्हारे कन्वीनियंस के जोन में आ रहा है। जो तुम्हें भाता है वो
तुम्हें ग्रोथ नहीं दे रहा है और तुमने ये कहानियां सुन ली हैं, बहुत ही एक कंफ्यूजन है, because the one enlightened part of the world says do what you love to do what you have your liking, there's only one life, why to struggle doing things which you don't like, and the other part of the world says अगर वही करते रहोगे जिसमें आपको कन्वीनियंस है, आपको लाइकिंग है, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि जो मिलना था वो तो मिल गया ना, अब और जो मिलना है वो तो फिर आगे अगले कदम पे है, अगला कदम तो मुश्किल कदम है। Till you don't face those difficult steps, till you don't step on those difficult paths, how will you become better than what you are? The second thing, which is equally simple, but yet not many people have realized this, is that the world is divided in 3 categories of people. तो दुनिया भर में लोग जो है ना 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एंड बेस्ड ऑन विच कैटेगरी दे आर इन, उनको जो मिल रहा है वो मिल रहा है। तो ये 3 कैटेगरी क्या है? ये 3 कैटेगरी आप सुनो, बड़ा सिंपल है, एंड यू विल बी काइंड ऑफ सरप्राइज दैट यू विल फाइंड योरसेल्फ इन वन ऑफ द 3 कैटेगरीज, बिकॉज इन तीनों के अलावा आप नहीं होते कहीं। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल which the world is divided into is where people are indisciplined. भाई उनके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं। So they don't have a routine, they don't have a regime, कब उठना है, कब सोना है, क्या काम कब करना है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई रूटीन नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड। ये वो लोग हैं जो आपको मिलेंगे एट रेलवे क्रॉसिंग्स। भाई रेलवे क्रॉसिंग बंद है, वो फाटक बंद है, ट्रेन आने वाली है, दी बैरियर इज डाउन, इसका मतलब क्या है? जब बैरियर खुलेगा तब आप जाओगे ना, और आप आए हो थोड़ा लेट आए हो तो आपके आगे कुछ गाड़ियां खड़ी है ना, तो डिसिप्लिन रहो और उस गाड़ी के पीछे रहो। लेकिन आपके जब खून के रोम रोम में, हर एक बूंद में आपके इनडिसिप्लिन है, तो आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट से राइट से निकाल के आप आगे लेके आ जाओगे रेलवे क्रॉसिंग के उस बैरियर पे, और आप आने वाला है जो रोड है, जो लेन है, उस लेन में भी अपनी गाड़ियों को लगा दोगे। और फिर क्या होगा? फिर एक समय जब ट्रेन क्रॉस हो जाएगी और ये बैरियर्स ओपन होंगे, तो आप यहां से जा रहे हो, अपने लेन तो आपकी है नहीं, आपने ऑपोजिट लेन को ऑक्यूपाई कर लिया है, वहां से भी आपके भाई बंधु हैं, उन्होंने भी ऑपोजिट लेन को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जो क्रॉसिंग 5 मिनट में हो सकती थी, अभी उसमें आधा घंटा ट्रैफिक जैम हो जाता है, जस्ट बिकॉज कुछ महानुभाव इनडिसिप्लिन थे। आई एम जस्ट गिविंग यू वन सिंपल एग्जांपल। तो ये इनडिसिप्लिन जो है, ये लाइफ में हमें कहीं नहीं ले आता, ये हमारा टाइम वेस्ट करता है, और हमें जो पाना चाहिए उससे हमें काफी दूर रखता है। दैट्स द पावर ऑफ इनडिसिप्लिन। सो चेक योर लाइफ, डू यू फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर इनडिसिप्लिन्ड, जिनके कोई रूटीन नहीं है, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो, इज देयर अ डिसिप्लिन इन द वे यू आर डूइंग बिजनेस? इज देयर अ डिसिप्लिन इन द वे यू आर organizing your finances? Is there discipline in the way you are at home? तो एक ये कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर देयर हु आर डिसिप्लिन्ड। सिंपल है, ये वो लोग हैं जो लोग डिसिप्लिन होते हैं, परंतु ये डिसिप्लिन कब होते हैं? जब इनके सर पे कोई डिसिप्लिन करवाने वाला होता है। तो ये होमवर्क करते हैं बिकॉज टीचर बड़ी कड़क है, तो ये डिसिप्लिन तरीके से होमवर्क कर लेते हैं। पहले कैटेगरी लोग कहते हैं टीचर होने दे, कोई होने तो हम नहीं करेंगे डिसिप्लिन, हम काम ही नहीं करेंगे। ये सेकंड कैटेगरी लोग हैं जो डिसिप्लिन हो जाते हैं, इनके लिए डिसिप्लिन होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इनके ऊपर कोई होना चाहिए। तो ये ऑफिस में टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं आए तो सैलरी कटेगी, इसलिए डिसिप्लिन हो गए। ये सिग्नल पे रुकते हैं, नॉट बिकॉज इनको सिग्नल की एक बड़ी एक मन में रिस्पेक्ट है, ये इसलिए रुकते हैं क्योंकि सामने ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा हुआ है। ये टैक्सेस टाइम पे भरते हैं, नॉट बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, बट बिकॉज they will have a penalty if you don't file their taxes in time. ये सारी statutory requirements पूरी करते हैं, not because they are very organized, but because if they don't fulfill, if they don't submit those requirements, they will be penalized. ये लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं और रहते हैं,
लेकिन ये तब तक रहते हैं जब तक इनके सर पे कोई रहता है। Then there is another category of people, and this category of people are the ones who are self-disciplined. ऊपर कोई हो ना हो, कोई टीचर इनसे होमवर्क मांगे ना मांगे, कोई इनको कोचिंग दे ना दे, कोई इनको टैक्स की रिक्वायरमेंट्स बोले ना बोले, इनका काम इतना ऑर्गेनाइज होता है that आप कभी भी इनके पास जाएंगे तो they are on the right track. They are organized, they are doing the work in such a systematic manner कि कहीं इनकी गलती होने का चांस नहीं होता. They have kind of gone into a self-discipline mode where they're saying, traffic constable or no constable, if it's a red light, I'll stop there. Whether government says GST को आप इतनी डेट को भरो ना भरो, मेरे अकाउंट्स क्लियर रहेंगे, मेरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी रहेगा. Whether income tax का ये एडवांस टैक्स का डेट आए ना आए, but I will be ready with my submissions. They are so organized because they are self-disciplined. इन्होंने खुद को डिसिप्लिन कर दिया है. So if you want to see, मोटा मोटी जो है ना दुनिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड है. जो लास्ट कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, ये कैटेगरी में बड़े कम परसेंटेज है. ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया है, whatever research has happened, that hardly 2 or 3% they fall into a category of self discipline. कि अगर एक कंपनी में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 100 में से 2-3% ही लोग ऐसे हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है. Majority are the ones who are disciplined because कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, and there will be still a handful of people जो वो रूल रेगुलेशन को तोड़ने पे भी उनको मजा आता है. They are disciplined about the indiscipline, right? So somewhere I feel that you got to take a call. You got to understand which category you belong to and decide. और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ग्रोथ कहां पर है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है ये जानने के लिए, समझने के लिए कि मैक्सिमम बेनिफिट हमें कहां मिलेगा, मैक्सिमम कामयाबी कहां मिलेगी. कोई सीक्रेट नहीं है. इट्स ओपन दैट द मोर यू आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, द मोर यू विल हैव सक्सेस. अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो कम से कम अपने आप को डिसिप्लिन माहौल में तो डालो. अगर आपको खुद का नहीं हो रहा है कि सुबह उठ के आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो, तो कम से कम अपने आप को उस माहौल में डाल दो ना कि आप एक ट्रेनर को हायर कर लो, जो ट्रेनर आपके इस दरवाजे पे सुबह 6 बजे आके नॉक करेगा. पुट योरसेल्फ इन अ रिजीम. अपने को एक ऐसे ग्रुप में डाल दो, ऐसे सर्कल में डाल दो जो आपको उस माहौल की वजह से आप वो बन जाओ. पुट योरसेल्फ इनटू अ डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट. उन लोगों के संगत में डालो जिसके साथ संगत में रह के आप डिसिप्लिन हो जाए. ये तो कर सकते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं करना चाहते. क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, ये डिसिप्लिन माहौल में जाने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है. कभी कभी हमें फीस के रूप में हमें ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, कभी कभी हमें किसी के लिए कुछ सेवा करनी पड़ती है, कभी किसी के लिए हमें कुछ भाव रखने पड़ते हैं, कभी कभी किसी के लिए कुछ करना पड़ता है टाइम से, एफर्ट से. तो ये डिसिप्लिन एनवायरनमेंट तो चाहिए हमें, लेकिन हमें उसकी कीमत नहीं देनी, हम ही अटक जाते. वो जो बोलते हैं ना लंगर होते हैं ना, आप जाओ कभी तो नॉर्थ में लंगर लगते हैं, बहुत गुरुद्वारों में लंगर लगते हैं. तो क्या होता है लंगर का मतलब क्या है, वहां फूड इज बीइंग सर्व, भोजन वहां दे रहे हैं. तो किसको दे रहे हैं भोजन? जो गुरु की सेवा में आया, जिसने वहां काम किया, जिसने जूते पॉलिश किए, जिसने झाड़ू पोछा किया, जिसने वहां पर भक्तजनों की सेवा करी. तो लंगर लगा है कि आओ भाई तुम लोग वो सेवा करके आए हो ना, चलो आओ तुम्हारे लिए भोजन गरम गरम खाना तैयार है, आओ खाना खा लो. कोई दूर से दर्शन करने आया है तो कहता भाई आपकी भक्ति को सलाम, आप आइए खाना खाइए. कोई वहां से टूरिस्ट बन के आया, कहने का दर्शन करने आज, चलो आइए आप भोजन करिए. कोई फकीर है, कोई गरीब है जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको वेलकम, आइए आप खाना खाइए. इमेजिन करो वो लंगर वाला जो है वो देखता है कि यार ये ना तो फकीर दिख रहा है, ना ये सेवा करता है गुरुद्वारे में आके, ना ही ये कहीं दर्शन करने के भाव से आया है, लेकिन रोज लंगर में आ जाता है. तो ना ये फकीर है, ना ये गरीब है, ना ये भक्त है, ना ये सेवक है, लेकिन मुफ्त का खाना खाने आ जाता है. तो वो भी कुछ कहेगा नहीं, उसका तो धर्म है खाना खिलाना, वो खिलाएगा. लेकिन वो समझ गया आपको, आप कौन हो, वो आपको जान गया है.
तो लाइफ में भी डिसिप्लिन जो है ना, वो लाने के लिए कभी कभार हमें जो है ना अपने आप को एक एनवायरनमेंट डालना पड़ता है, और उस एनवायरनमेंट की हमें कीमत देनी पड़ती है, कभी पैसे से, कभी सेवा से, कभी आप अपना कोई सत्संग का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई आपका होते ना ग्रुप्स ऐसे, तो आप उस माहौल में आ जाएंगे, वहां पर आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। आप एक कोई मॉर्निंग वॉक का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप उस माहौल में आ जाएंगे। कोई स्पोर्ट्स ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप उस माहौल में आ जाएंगे। या फिर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग लीजिए विद अ पेड इंटरवेंशन, आप उस माहौल में आ जाएंगे। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स a few days back who was part of who's going to be a part of my Rasamasti program. I said ये एक सिस्टमैटिक इंटरवेंशन हो जाएगा ना, तुम अनजाने जाने में एक रिजीम में आ जाओगे, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में आ जाओगे कि काम कैसे करना है। अभी कोई टोकम टोके वाला इंसान नहीं है, कोई तुम्हें बता नहीं रहा है ना, तुम सुनने के लिए कहीं जा रहे हो जो तुम्हें बता रहा हो कि भी ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो। लेकिन आप जब एक 8-9-10 महीने आओगे इस माहौल में, तो यू विल समवेयर गेट चिजल्ड। तो उस चिजलिंग के पैसे हैं यार, बाकी नॉलेज तो फ्री है, तो कहीं भी ले लो, लेकिन ये माहौल के पैसे हैं कि आप ऐसे 1500 एंटरप्रेन्योर्स के माहौल में आओगे, आप ऐसे एक एनवायरनमेंट में आओगे जहां पर आपको बार बार कुछ चीजें सुनने को मिलेंगी, और आप ऑटोमेटिकली ऑन द पाथ ऑफ डिसिप्लिन आ जाओगे। दैट्स व्हाट गौतम बुद्ध सेड, संगम शरणम गच्छामि, कि किस संग में आपको। सो 3 कैटेगरी के लोग हैं इनडिसिप्लिन, उनके बारे में बात जितना कम करो उतना अच्छा। एक है डिसिप्लिन, ये कुछ तरक्की पा लेते हैं, कुछ ग्रोथ पा लेते हैं, इनको समझ में आता है कि यार ये मेरे बस का नहीं हो रहा है, तो मैं किसी के साथ रह के या किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में मैं कुछ कर लूं। लेकिन थर्ड कैटेगरी होती है वेयर दे आर सेल्फ डिसिप्लिन। फिर ये लोगों को जरूरत नहीं होती ज्यादा किसी की, ये लोग सबके लिए हेल्प के रूप में आ जाते हैं, सबके लिए मदद के रूप में आ जाते हैं, बिकॉज इनकी लाइफ तो इनकी कंट्रोल में है ना, दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर द वंस हु बिकम द पिलर्स, द पिवट्स फॉर सो मेनी पीपल अराउंड हु आर इनडिसिप्लिन। तो घर में एक सेल्फ डिसिप्लिन तो होना चाहिए। मालूम पड़ा घर के सारे जो मेंबर्स हैं सब इनडिसिप्लिन है, तो घर की तो बैंड बजनी ही बजनी। कोई तो होना चाहिए घर में मुखिया जिसकी जिंदगी सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, कि उसको कोई कह नहीं रहा है कब उठना है, उसको कह नहीं रहा है कि कैसे जिंदगी जीनी है, वो अपने एक सेल्फ रिजीम में चल रहा है। जब एक ऐसा घर में होता है तो उसकी वजह से काफी लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो क्या आप वो हो अपने घर में, ये सवाल पूछो, और नहीं हो इस साल 2023 में वो बनने के लिए तैयार हो जाओ। And I'm sure 2023 will give you a lot in return. हाँ जी, कुछ बात पल्ले पड़ी? कुछ समझ में आया? तो आज आपसे 2 बात So tell me your insight which you have been able to pick up. तो जो लोग पहली बार आज हैप्पी माइंड्स में आए हैं, आई एम श्योर यू हैव सर्वाइव्ड सो फार। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। इसका मैं मानसी सेज, इसका मतलब है सर इस साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस साल वो सब करना पड़ेगा जो आपने कई सालों में या पिछले सालों में किया नहीं, बिकॉज आप वो पाना चाहते हैं जो आज तक आपको आया नहीं। वो बोलते ना पागलपन का एक एग्जाम्पल दो, तो इंसानिटी या पागलपन उसको बोलते हैं कि आप वही काम करते रहो जो आप करते आए हो, लेकिन चाहत कुछ की और चीज रिजल्ट की हो। तो जैसे ना मुझे पराठा खाने का बड़ा शौक है, सो आई लव ईटिंग पराठा। जो नॉर्थ का हूं तो आलू के पराठे, गोभी के पराठे, एंड विंटर्स है तो ये पराठों का समय है, एंड उसमें मक्खन लगा के जम के खाने में बड़ा मजा आता है। तो इंसानिटी का मतलब क्या है? खाते रहो पराठे और एक्सपेक्ट करो 6 पैक। तो इसको बोलते हैं पागलपन, इसको बोलते हैं येड़ापना। तो अगर हम वही करते आएंगे जो पिछले साल किया, तो शायद वही पाएंगे जो पिछले सालों में पाया है, या शायद वो भी नहीं पाएंगे। तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा इस साल, बिकॉज कुछ अलग पाना है। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट।
हाँ जी, celebrate struggle. So the major insights is, don't celebrate success of others. Be happy for the success of others, but celebrate their struggles. Ask this question, what they did. And second question, why they did what they did. So what they did was hard work. What they did was perseverance. What they did was they they spread it a lot. What they did was they burned the midnight oil. ये इन्होंने सब किया. लेकिन ये why did they do this? Because in doing all this, they reached where they wanted to reach. तो ये आदत कि मैं अपने likes और dislikes को subordinate कर दूंगा, मैं अपने likes and dislikes को छोड़ दूंगा, because I have a higher purpose, I have a higher objective. I will always keep the higher objective in mind. और उसके लिए फिर ये जो मेरे लाइक्स डिसलाइक्स हैं इसको मैं साइड रख दूंगा. ये आदत आपने बिल्ड करनी. कितना भी पसंद आ रहा हो वो गाजर का हलवा, बट योर हायर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. इस साल यार फिट रहना है. सो यू डिले दैट ग्रेटिफिकेशन. इसे कल खाऊंगा यार, आज नहीं. और ऐसा कल करते 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 365 दिन निकाल लो. बस कल देर से उठूंगा, आज जल्दी उठता हूं, बस कल देर से उठूंगा. यू डिले दैट. और ऐसा कल करते 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 365 दिन सुबह उठ गए. That's it. The world needs disciplined people. The world does not need indisciplined people. And the world would love to have self-disciplined people. Need तो disciplined लोगों की है, but they would love to have self-disciplined people. जो खुद से अपना डिसिप्लिन सेट करे. आप किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में डिसिप्लिन हो गए तो अच्छी बात है. लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ डिसिप्लिन हो गए तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती. I attended HM for the first time, but I'm self-disciplined. Also cleared why I'm doing this, but still getting failure. Please continue on this topic too. Absolutely. Yeah. Okay. ठीक अंजलि. Next HM में हम लोग बात करेंगे about handling failures and why, why people fail and what we can do when we fail. तो how do we handle failures? तो क्या करें इसके बारे में हल्का सा हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट HM में. But be disciplined to be there next HM. And I don't want to give you a bigger example of self-discipline because this is the 1128th HM. तो सेल्फ डिसिप्लिन ही होगा ना. मुझे किसी का प्रेशर नहीं है. मोदी जी ने कहीं ऐसा नहीं रखा है मुझे मेरे कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा अगर आपने नेक्स्ट HM नहीं लिया. तो मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई मेरे पर बंदूक नहीं रखा हुआ है, कोई गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई किसी HM सीकर का या किसी क्रिसिलिन का दबाव नहीं है कि आपको HM लेना ही पड़ेगा. तो इट इज माय ओन सेल्फ डिसिप्लिन. और अगर मैं बंद भी कर दूं, मिस भी कर दूं, एक HM हटा भी दूं या फिर मैं कहूंगी HM लेना ही नहीं है, तो कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा ना. मेरा कोई नुकसान नहीं. मेरा किसी का दबाव नहीं, किसी का प्रेशर नहीं है, किसी का पैसा नहीं लिया हुआ है मैंने. बट आई स्टिल एम डूइंग इट वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, years after years, 25 years at a stretch. अब इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता सेल्फ डिसिप्लिन का. So make a great week for yourself and see if you can bring self-discipline in 1 or 2 areas and then expand those areas and then make it bigger. So let's celebrate the struggles of people. Let's focus on what they did and why they did that and pick up something from there. Build up this habit. अपने likes dislikes को side करते हैं and let us be on the discipline side. Let us bring discipline from our own within. And I'm sure 2023 is waiting for us to receive what we have never received in our lives. वो पाने के लिए जो कभी नहीं पाया, वो करना पड़ेगा जो कभी नहीं किया ना. Am I right or not? तो इस विचार के साथ आज का HM करते हैं और मैं गरम चाय पीता हूं with some nice lovely parathas. आज वो खाया जाएगा, ठंड में तो बनता ही है. चलो, see you all and make a great life for yourself. See you next week. Some of you I'll see you tomorrow for our Blueprint 2023 के session में. God bless you all.